All right. So today, basically, since your exams are almost around the corner with 13 days left, and it is very important, given all of your preparation, everything that you've learned, everything that you've memorized, not just for econ, but for every other subject, the most important thing is that just you guys don't panic. Don't just overwhelm yourself. Exam wale day, your mind gets blank or anything. Give yourself some time, some peace and everything. And the most important thing is कि get yourself to the right track कि कौन सी information को किस तरह से आप लोगों ने present करना है on your paper so that the examiner is basically pushed or motivated enough कि वो आपको maximum से maximum score दे सके. And by maximum score I mean about around 18, 17 out of 20. So this is the maximum score that an examiner can give you. So for that, we hosted this class today because specifically with econ and everything, mainly के questions को starting from like baby steps and from the scratch कि किस तरह से mainly के question को answer करना है, what should be your format, how long should the introduction be, how an introduction should be, फिर कौन कौन सी सब headings आनी चाहिए, सब headings के अंदर question statement को देख के क्या reflect होना चाहिए, because an examiner mainly they have thousands and thousands of papers to check. You know कि almost every year about 30K students appear, and उसमें से econ, I mean, if not majority, but about 10,000 students to econ के भी ज़रूर होंगे. So an examiner barely has 40 seconds to a minute to check your paper because when they're already exhausted and checking so many papers and don't think कि examiner के पास किसी चीज़ का knowledge नहीं है, they are subject specialists, they are experts and they've already checked thousands of papers and वो उन papers पे grading के बाद उस perspective से आपका paper check कर रहे होंगे. So you need to know that आपके जितने competitors होंगे जिन्होंने क्या जो जो चीज़ें लिखी होंगी because this exam is mainly a competitive exam. So उन्होंने जो चीज़ें लिखी हुई होंगी आपने अपनी चीज़ों को regardless of how much information you may have, what qualification you may have, you just have to present it in a way to your examiner कि आपके examiner आपको भी maximum उसमें marks दे सकें. So with that, I will be starting with mainly, let's just go over the very basics कि overall किस तरह से एक paper को format करना है, is writing the question a requirement or not, कौन-कौन सी आप लोगों ने headings किस तरह से देनी है. फिर उसके बाद we will be going into some economic specific things जिसमें I will be sharing some questions कौन से question के उसकी बैठ के like live let's make a live outline for that specific question. उसके बाद after making that outline, some students, specifically students from who were already enrolled in our batches, they had a question कि if there is paper 1 or paper 2 specifically तो कौन-कौन सी theories कहाँ पे integrate करनी है. Paper 2 because a lot of people paper 1 is relatively scoring, but if you have a good grip over paper 2 as well, because paper 2 का बहुत syllabus नहीं होता, but if you can write it in the right way, what can happen is that you can score more in paper 2 as well. But उस right way को क्या करना है that you do not have to make it like a current and park fair exam, and by that I mean उसके अंदर कोई generic information नहीं ज़्यादा देनी. If you're writing, because paper 2 is all about economy of Pakistan, so if you're giving any information, make sure क्योंकि वो economy के related है, you're adding as many stats as you can, and stats गलत नहीं देने. Sometimes there have been some mocks जिनमें I've seen that students ने tax to GDP ratio 5% लिखा हुआ है, and एक overall suggestion दी हुई है कि बाकी countries जिनका model follow करना चाहिए उनका 10% है. So just keep in mind कि अब इस time पे पाकिस्तान का क्या stat है, because examiner ने जब already वो इतने सारे stats और जिन लोगों ने सही stats quote भी किए हुए होते हैं उनके पढ़ लिए होते हैं. So when you quote a wrong stat तो वहाँ से थोड़ा सा आपका एक overall knowledge का and एक gap show होता है जिसकी वजह से वैसे आपका मार्क ना कट होना हो, बट गलत स्टैट देने पे ज़रूर आपका मार्क उस चीज़ पे डिडक्ट हो जाता है. सो जस्ट मेक श्योर स्टैट्स गलत नहीं है. इफ यू आर कोटिंग मॉडल्स, theories, they're very good. उनके बारे में आप even 2 to 3 sentences भी इन मॉडल का नेम भी कोट कर देंगे, because the examiner is not going to read कि आपने उसे मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए नीचे कितनी लंबी एक्सप्लेनेशन दी है. The examiner is going to see, okay, आपने कोई ग्रोथ का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, you've quoted mainly like Rostow's 5 stages of growth और सोलोस्वान ग्रोथ मॉडल, कोई भी आपने मॉडल कोट किया है उसके अंदर, एंड आपने बताया हुआ कि अगर इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करें तो इस तरह से ये चीज़ हो सकती है. As far as you quote the model and उस मॉडल को आपने एक डिफरेंट पेन के साथ, डिफरेंट मार्कर के साथ हाईलाइट किया हुआ है, you're good to go and like you can score well enough in that as well. So with that, let me share my screen and we can mainly like kind of draw a page and see कि किस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं.
All right. I hope my screen is visible to all of you. And okay, so let's suppose that so this is like a sheet जो आपको आपके overall CSS के examination में मिलेगी. Typically, when you open up your booklet, for those who have not taken, whose first attempt is at this moment, जो when you open up a booklet, it is a booklet. So अगर आपको आदत नहीं है इस टाइम पे, you should know कि वो एक book की तरह साइड से पूरी booklet की तरह बनी हुई होगी. वो corner से stapled नहीं होगी, वो loose sheets नहीं होगी. So it is gonna be a booklet. And the first page is basically for your signing and everything. Second page के ऊपर instructions वगैरह होती हैं. सो योर सेकंड पेज में मेनली आपका आंसर शुरू करने के लिए आपको ऑलमोस्ट हाफ अ पेज के बाद से लाइंस मिलना शुरू होती हैं. सो व्हेन यू गेट योर लाइंस फ्रॉम हेयर एंड देन कम्स योर सेकंड पेज ओवर हेयर, फिर यहाँ से ऑनवर्ड्स आपकी फुल पेज की लाइंस यहाँ पर शुरू हो जाती हैं. So what you have to do is, and what mainly I did was, I scored 142 in CSS 2025 in economics. And what I did was, typically I used, so you would know that there have been, starting from how basically you should present your exam, there are two markers basically. If you can use, एक तो आपके normal जो round tip markers होते हैं वो होते हैं. Otherwise जो आपके cut nib markers होते हैं, there is one that is जो master का होता है 605 and एक है आपका 604. So what I usually did was कि 605 blue से black से किसी भी चीज से I used to write the question number. So basically, for example, if I'm attempting question number, uh, let's say you've question number 2 है आपके पास 2 to onwards 8 questions होते हैं, 7 questions होते हैं, but it starts with question number 2. But if I'm attempting question number 2, I used to write here question and then यहाँ पर question number 2. And with that, under it, in a bracket, I used to write, for example, the question number 2 is related to a microeconomic theory, या for example, diminishing utility या cardinal utility के related है. तो मैं यहाँ पर bracket में cardinal utility या कोई ऐसी चीज़ mention कर देती थी ताकि examiner को question में पूरा नहीं लिख रही, statement नहीं लिख रही, but examiner को ये idea हो जाए कि मैंने वो question attempt किया. Maybe if the examiner does not remember, maybe if my paper is one of the first few papers that the examiner is checking, they don't have to go back and see question number 2 क्या था, उसकी क्या क्या requirements थी. So kind of like an overview of the question, the question cardinal utility wala tha, that is what I'm attempting. With that, that used to be my first two lines. And uske baad, I used to start with margin के अंदर one की typically लोग एक ही सब heading देते हैं, जो भी आपने अपना उसको label करना होता है, that totally depends on you. With that, just write your introduction. And introduction की heading दे के आपने यहाँ पर, then you start writing your introduction moving forward. Now, typically, we all know, ये तो भी आप लोगों को idea होगा ही, that out of from question number 2 to question number 8, basically you have to attempt 4 questions. So overall, जो आपके बाकी papers में भी आपको pattern follow करना चाहिए, that is that your first best and your second best question should be your first question जो आप attempt कर रहे हैं, and your last question जो आप attempt कर रहे हैं. That is because first question के अंदर first impression is your last impression. आप अपना impression develop कर लीजिए. So your first best question should be the first question that you're attempting. Last question में जाके what typically students do is, because time constraint आ रहा होता है, panic हुए हुए होते हैं, आप 3 hours तक लिख लिख के थक गए होते हैं, तो students अपना momentum lose कर जाते हैं. This is the part जहाँ पर आपके examiner ने आपको आके final marks award करने हैं. So you don't want your examiner to lose their interest at that time. And you don't also want कि आपका first question अगर for example आपने 10 to 11 pages पे लिखा था, you don't want कि आपका last question almost 6 to 7 pages पे जाए. So now imagine if your examiner basically awarded you about, like let's say 14 to 16 marks आपके इस पे 10 to 11 pages वाले question पे आपने अपने caliber उसको अपने best question पे यहाँ तक set करवा दिए. So वो already जब आप वहीं से pages 4 lose कर जाएंगे, तो आप इसके ऊपर overall आपके marks भी almost 7 to 8 के around fall करेंगे, which is like a substantial dropout of 20 marks, because optional subjects are always those subjects जिसमें आपने maximum score लेना होता है अपनी merit को increase करने के लिए. So don't make this bias, don't do this. अपना first question सबसे first के लिए, and then second question अपने second best question अपने सबसे last के लिए. Question number 2 and 3 as per your will, your second best question, your third best question, जिस तरह से भी करना है. If there is a question जिसमें आपको models नहीं समझ आ रहे क्या देने हैं, I would personally recommend कि उस तरह के questions आप base mainly अपना question number 3 के time पे पूरा clear करें, because first 2 questions में examiner आपको एक अच्छे mood में देखने लग जाते हैं. उसके बाद वो third question के ऊपर जाके मेनली उनका एक मूड अच्छा बन जाता है. वो फोर्थ क्वेश्चन पे देखते हैं, इफ यू कैरीड ऑन द सेम मोमेंटम, यू हैड द सेम लेंथ ऑफ पेजेस एंड एवरीथिंग, you're good to go and you're good to score good marks. So this is one thing that I would definitely recommend कि ये जरूर follow करें, not just for econ but for every other exam as well.
With that, if you go on to intro, typically what most students do is कि वो introduction के अंदर कोई ना कोई quote देते हैं. So a recommendation is that कि आप लोग अगर कोई भी quote दे रहे हैं, quote को आप starting में दें, quote को हमेशा पेज के center में लिखें. साइड से फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर भी लाइंस और इस साइड भी लाइंस हैं. लीव दोज लाइंस. ट्राई यूजिंग अ डिफरेंट कलर्ड पेन फॉर दिस. सो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ पर, कोड दे दिए. इफ यू राइटिंग विद अ ब्लू पेन, किसी ब्लैक पेन के साथ आप कोड दे दें. What I used to write was, and what I've learned so far from my mentors is that pointer is a good pen to write. उससे आपकी overall writing अच्छी हो जाती है. The color itself is appealing to the examiners, so on and so forth. So, but if you write with a ball pen, ink pen, typically examiners do not favor ink pens. It is because ink, number one, it fades away with time. You don't know आपका पेपर 1 month बाद चेक हो रहा है, you don't know आपका पेपर 6 months बाद चेक हो रहा है. It fades away with time. Secondly, if slight water या कोई भी उसके ऊपर ऐसी liquid spill हो जाता है तो वो ink आपकी पूरी distort हो जाती है, जो कि बाकी पेन्स के साथ इस तरह से इतना ये इशू नहीं आता. So that is why ink pens are not much recommended. However, if you've practiced on that, I wouldn't comment much. It is up to you at this stage, especially because आपकी writing speed ही um, ओवरऑल सबसे ज़्यादा मैटर करती है. तो अगर आपने उस पर प्रैक्टिस की हुई है, सो डोंट जस्ट स्विच इट एट द 11th आवर. क्वेश्चन की लेंथ शुड बी अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 9 to 11 पेजेस. इकोनॉमिक्स में ओवरऑल एवरेज लेंथ 10 पेजेस की आ जाती है. मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड देयर मॉक्स एंड एवरीथिंग सो फार वो 10 पेजेस पे एवरेज फॉल करते हैं. And that is the reason because economics के अंदर what you have a great leverage of making graphs, tables, कोई ना कोई drawings, flow charts. तो वो चीज़ें ही जब आप draw करते हैं तो उसके साथ ही आपका overall like 1/3 of a page और basically 2/3 of a page ये different आपकी pages की length अगर आप graph बना रहे हैं उसको explain कर रहे हैं नीचे so आपके काफ़ी pages उन चीज़ों में fill हो जाते हैं. So when almost I will go over that on the next pages that I'll explain. जब आपकी चीज़ें ही इतनी draw हो जाती हैं so आपने साथ साथ content भी लिखना है उसको explain करने के लिए. So typically students 10 pages तक average लिख लेते होते हैं econ के अंदर. Anyways, so when you've written your introduction दे दिया, quote अगर आपने लिखना है कोई लिख दिया, it is however not necessary. Introduction सबसे ज़्यादा important है कि introduction में जो question statement थी, I will be going over a sample question statement. उसके तमाम aspects को आपने ज़रूर answer करना है. Another thing regarding brainstorming is that I would recommend कि when you read a question, read all of the questions first. Give yourself about 5 to 10 minutes. Read करें. इतना time although होता नहीं है. Multiple choice questions में you have 20 minutes to attempt it. And after 20 minutes, your examiner, they collect, if you have a bubble sheet, वो आप सब आपकी bubble sheet collect कर लेते हैं. Questions, MCQs are such questions that you know it or you don't know it. So I would personally recommend that it is not wise to spend all 20 minutes on objectives because if you don't know an answer, 20 minutes के अंदर आपको answer समझ नहीं आ जाएगा. So just mark on your question paper the objective that you think is the right answer. उसके बाद या दे कलेक्टेड आफ्टर 20 मिनट्स. उससे पहले आपने जब भी वो फिल करना है अपनी बबल शीट, आपने एक तो ये ज़रूर देखना है कि आप क्वेश्चन नंबर के साथ उसकी सही ऑप्शन को फिल कर रहे हैं. समटाइम्स क्वेश्चन नंबर 13 होता है, स्टूडेंट क्वेश्चन 14 के ऑप्शन को 13 के अंदर फिल कर देता है. यू डू नॉट गेट एन एक्स्ट्रा बबल शीट एंड वो आप कटिंग भी नहीं कर सकते, तो यू जस्ट लूज दैट मार्क. सो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है. जितना जल्दी मल्टीपल चॉइस आपके हो सकते हैं, गिव इट 5 to 10 minutes एट मोस्ट. 1 minute a क्वेश्चन दे दें आप, तो 1 minute a क्वेश्चन भी देंगे इनफैक्ट तो वो भी ज़्यादा हो जाता है. सो यू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, गो टू योर सब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव्स के ऊपर पढ़ना शुरू कर दें. रीड ऑल द क्वेश्चंस थॉरली. रीड ईच क्वेश्चन, अंडरलाइन द पॉइंट्स जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज टिपिकली इकोनॉमिक्स क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट के अंदर 3 3 चीज़ें भी पूछी होती हैं. एंड इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ पूछी हुई है, इट इज़ ईजियर टू राइट बिकॉज उस क्वेश्चन के अंदर आपको पता होता है कि आपको पास फॉर एग्जाम्पल अगर लॉ ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, कार्डिनल यूटिलिटी पे आ गया, ऑर्डिनल यूटिलिटी पे आ गया, किसी भी चीज़ पे आ गया. सो आप उन्होंने आपसे पूछ लिया, यू नो आपने यूटिलिटी एक्सप्लेन करनी है, यू नो आपने उसमें से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करना है, एंड देन थर्ड में आपने मे बी जाके उसकी लिमिटेशंस एक्सप्लेन करनी है. सो योर क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 3 parts एंड ईच पार्ट कैरीज अबाउट 6.5 to 7 marks. ईच पार्ट के ऊपर आपने इक्वल अटेंशन पे करनी है. आपने ये नहीं करना कि आपने फर्स्ट पार्ट जिसमें आपने पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करनी है उसको आपने 6 पेजेस में कर दिए एंड बाकी दोनों पार्ट्स को आपने 2 and 2 पेजेस में किया हुआ है. उसमें क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में आपको 7 सुपर मार्क्स नहीं देंगे वो, बट बाकी सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन का यू लूज मार्क्स ओवर देयर. सो पे इक्वल अटेंशन एंड इक्वल इन्फॉर्मेशन सारे पार्ट्स को जो जो क्वेश्चन के अंदर पूछे हुए हैं.
Paper one questions are mostly close ended, and how would it be possible to expand it to 10 pages? I will go over some paper one questions, and once I'll break it down, you will know कि किस तरह से आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस पे कर सकते हैं. Those I'll go over some of the questions जो हमने अपने क्लास के मॉक्स में भी अटेम्प्ट किए हुए, एंड देन वी कैन पुल अप 2025 का जो सबसे लेटेस्ट पेपर हुआ था उसको भी आप जब आप देखेंगे व्हेन यू ब्रेक इट डाउन, टिपिकली जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें ग्राफ्स टेबल्स जितने आप मैक्सिमम ऐड करेंगे उतना आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं. एंड द मोर यू ऐड द मोर यू ड्रॉ, आपके पेज की लेंथ उतनी इंक्रीज होती जाती है. बिकॉज आई ऑलवेज रिकमेंडेड इट टू माई स्टूडेंट्स कि वेन एवर यू आर मेकिंग अ ग्राफ और वेन एवर यू आर मेकिंग अ टेबल, आपने उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देनी है, उसको ओनली बना के इन द एयर नहीं छोड़ देना. बट आई विल गो ओवर दैट वंस वी बेसिकली अंडरस्टैंड द पैटर्न कि आपने किस तरह से करना है. सो व्हेन यू राइट योर आंसर, आपने ओवरऑल जो क्वेश्चन पढ़ लिया वो होगा, उस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके, सो फॉर एग्जांपल आपसे अगर यूटिलिटी के ऊपर पूछा हुआ है, आपने उसकी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है. क्वेश्चन उन्होंने मे बी अगर ऑर्डिनल यूटिलिटी पे इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में पूछा हुआ है, सो यू हैव टू स्टार्ट कि ऑर्डिनल यूटिलिटी आती कहाँ से, यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट आती है, इट इज कंज्यूमर बिहेवियर, सो यू हैव टू राइट अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर, यू हैव टू राइट अबाउट यूटिलिटी. देन उसकी दो अप्रोचेज होती हैं, कार्डिनल होती है, कॉर्डिनल होती है. आपने ऑर्डिनल के बारे में लिखना है. ऑर्डिनल यूटिलिटी स्टार्ट कहाँ से होती है, इट स्टार्ट्स विद इंडिफरेंस कर्व. उसकी मेनली थ्योरी कौन सी आती है बीच में, वो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की आ जाती है. सो एमआरएस के बारे में रखना है. व्हेन इट कम्स टू इंडिफरेंस कर्व्स, यू हैव टू थिंक किसको आपने ड्रॉ करना है, आपने इसका इंडिफरेंस कर्व मैप ड्रॉ करना है. व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, तो वो छोटे छोटे से विद अ पेंसिल ऑन योर क्वेश्चन पेपर, जस्ट तेजी से आपने वो अपने छोटे से ब्रेन स्टॉर्मिंग के नोट्स बना लेने हैं. सो वंस यू हैव दोज नोट्स, देन यू बेसिकली हैव एन एंटायर पैटर्न इन योर माइंड कि अब आपने क्वेश्चन को किस तरह से लेके वो नेक्स्ट 10 पेजेस को किस तरह से प्लान करना है लिखने के लिए. वंस यू हैव दैट, आपको ड्यूरिंग योर आंसर साथ साथ ब्रेन करके नहीं सोचना होगा, या ड्यूरिंग योर आंसर आपने फॉर एग्जाम्पल यूर ऑन पेज नंबर 4, यू राइटिंग योर फोर्थ पेज, आपको ये नहीं याद आएगा कि ओ यू जस्ट मिस दैट पॉइंट जो कि आप स्टार्ट में लिखना जरूरी था. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बिफोर स्टार्टिंग एन आंसर आप उसको पहले से ब्रेन करके उसके पॉइंट्स को ऑर्डर में करके लिख लें, एंड देन उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके फर्दर अपनी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स बना के उनको लिखते जाएं. So after your introduction, second चीज जो आपकी आएगी वो we will go over your question statement and everything, but mainly your second thing that will come over here is जो आपका क्वेश्चन की मेन क्वेश्चन स्टेटमेंट में चीज उन्होंने आपसे पूछी हुई होगी. सो वी विल गो ओवर क्वेश्चन, आई लेट यू नो, बट जो आपकी मेन क्वेश्चन स्टेटमेंट के बारे में बात पूछी हुई होगी वो स्टेटमेंट आपने यहाँ पर वहां से लिख लेनी है. एंड देन उसके बाद आपने वो स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पर इफ यू आर गिविंग सब हेडिंग्स, या फॉर एग्जांपल आप कोई लिमिटेशंस लिख रहे हैं या अजम्पशंस लिख रहे हैं, सो आपने उसकी दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज मार्जिन, इफ दिस इज योर मार्जिन, मार्जिन के अंदर ये लिख के, सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग द अजम्पशंस ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व, तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे देती थी अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. यहाँ पर ये पूरी और ये वाली हेडिंग, सो ये वाली मेनली मेरी सारी हेडिंग 605 मार्कर से आपने मेनली देनी है. ये वाली हेडिंग इट्स अप टू यू कि आपने 604 मार्कर से देनी है या आपने ग्राउंड टिप मार्कर से देनी है, बट हेडिंग्स आपने मार्कर से जरूर देनी है, नॉर्मल पेन से नहीं देनी. सो 604 या जो कोई भी राउंड टिप पेन मार्कर आपने उससे ये वाली अपनी हेडिंग दे दी. एंड देन टिपिकली अगर assumptions हैं उनको तो आप यहाँ पर पॉइंट्स में यूं करके लिख सकते हैं डिफरेंट के, ये 4 assumptions है. हाउएवर यू हैव टू अवॉइड कि आप बहुत ज्यादा पॉइंट्स में अपना आंसर ना लिखें. अगर आपने एक assumption दे दी है कि इट इज एन ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, या इसके अंदर क्वांटिफाइबल नहीं है, ये नहीं है, तो अगर आपने लिख दिया कि इट इज़ अ नॉन क्वांटिफाइबल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, तो आपने उसके नीचे उसको एक्सप्लेन करना है कि नॉन क्वांटिफाइबल का क्या मतलब है, इसमें यूटिल्स नहीं होती, इसमें किस चीज़ से डिराइव करते हैं. सो मे बी इन अ लाइन और टू आपने वो assumptions यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी. सो दिस इज हाउ आपका सेकंड पेज, एंड होते होते आप मेनली अपने बाकी पेजेस के ऊपर भी एक्सपैंड करते जाएंगे. सो योर थर्ड पेज, यहाँ पर भी आपने अगेन अपनी थर्ड सब हेडिंग, उसके हेडिंग देन सब हेडिंग, और उसके नीचे वो पॉइंट्स एक्सप्लेन करते जाने. देन कम्स योर ग्राफ. सो इफ दिस इज द ओवरऑल साइज ऑफ वन पेपर, आई वुड रिकमेंड आपका ग्राफ शुड बी एट लीस्ट वन थर्ड ऑफ योर पेज का साइज. सो आपका वन थर्ड ऑफ योर पेज का साइज इज द ग्राफ. आपने एक इनडिफरेंस कर्व यहाँ पे बना लिया है, आपने इसके एक्सिस को जरूर में लेबल करना है. सो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या यहाँ पर आपने गुड ए और गुड बी रखा हुआ है क्योंकि आप यूटिलिटी देख रहे हैं एक कंज्यूमर की दो डिफरेंट गुड्स के बीच में, तो आपने गुड ए गुड बी यहाँ पर अपने ग्राफ को मेजर कर दिया है. आप एक नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं, आपने यहाँ पर आई सी बना लिख देना है कि दिस इज एन इंडिफरेंस कर्व. एंड देन उसके बाद इफ यू मेकिंग एन इंडिफरेंस कर्व मैप, आपने यहाँ पर अगर IC1 लिखा है, आपने यहाँ पर IC2 लिख दिया, यहाँ पर IC3 लिख दिया, तो ये आपका इंडिफरेंस कर्व मैप आ गया यहाँ पे. उसके बाद आपने अगर बताना है कि आपने ऑलरेडी अगर MRS एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका ग्रेडियंट जो होता है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बताता है,
I hope you all know these terms because मैं इनको इस टाइम पे explain इसलिए नहीं कर रही because this is like a paper attempting class. तो I'm just assuming कि सबको पता है कि कौन कौन सी terms हैं जो मैं बोल रही हूँ because papers are right around the corner इस टाइम पे तो सारी चीज़ें almost सबको मैं याद होंगी ही. So if you're writing about MRS तो आपने यहाँ पर gradient उसका explain कर देना है कि ये चीज़ is MRS. MRS को आपने नीचे जाकर अगर if you're writing IC over here तो आपने नीचे लिख देना है कि where IC stands for indifference curve. तो ये चीज़ आपने यहाँ पर लिख देनी है मतलब इफ यू राइटिंग एनी एब्रीविएशंस आपने उन एब्रीविएशंस को भी नीचे एक्सप्लेन करना है कि आपका ईच एब्रीविएशन का क्या मतलब था. MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपने एक्सप्लेन कर देनी है कि इसका ये मतलब है. व्हेन यू राइट इट एंड देन in a line or two almost like maximum 3 lines में you have to explain that यहाँ पर आप इसको basically figure या graph 1 जो अगर 2 था जितने भी ग्राफ थे आपके उसके नाम से इसको आपने नाम भी दे देना है. So once you write it, then you have to explain it in a word, in a sentence or two, that in figure 1, an indifference curve or an indifference map is shown. For example, अगर हम indifference map की बात कर रहे हैं. So in figure 1, an indifference curve map is shown, which basically shows that how each successive curve on the indifference map has a greater utility or yields a greater utility to the consumer. The MRS is basically the gradient of the curve, which is demonstrated by the lines as shown on the graph. That is it. आपने सिर्फ इतना सा बताना है कि वो ग्राफ है किस चीज़ का. यू एक्सप्लेन इट. उसके बाद अगर आपने ये इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए कोई टेबल बनाई थी तो आपने अगेन ऊपर दे देनी है कि जी स्केड्यूल ऑफ समथिंग है, आप इसकी डिमांड कर्व बना के दिखा रहे हैं, यूटिलिटी को लिख के दिखा रहे हैं. सो आपने उसका यहाँ पर हेडिंग दे दी कि जी स्केड्यूल ऑफ डिमांड कर्व है यहाँ पर आपका. एंड आप उसके बाद उसको भी इसी तरह स्केल के साथ अच्छी सी लाइंस बनाकर यू हैव टू ड्रॉ इट. एंड देन आपने उस ओवरऑल टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं उसको भी 1 लाइन या 2 लाइन के अंदर एक्सप्लेन जरूर करना है. सो दिस इज हाउ मेनली कि आपका एक पेज अगर आप एक ग्राफ एंड एक टेबल ही दे रहे हैं उससे फिल हो जाता है बिकॉज आपने ग्राफ उसके नीचे उसकी 2 to 3 सेंटेंसेस की एक्सप्लेनेशन देन एक टेबल या एक और ग्राफ उसकी एक्सप्लेनेशन जब देंगे. MRS को एक्सप्लेन करें तो उसका फॉर्मूला जरूर देना है. जब ये सारी चीजें देंगे तो आपके पेजेस बहुत इजीली फिल होते जाएंगे. सो दैट इज व्हाई पेपर 1 में पेजेस फिल करना इज वेरी इजी बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू ड्रॉ, लॉट्स ऑफ बेसिकली थ्योरीज एंड ऑल ऑफ दोस क्लोज एंडेड थिंग्स टू कोट जिनसे आगे पेपर्स फिल हो जाते हैं. एंड देन उसके बाद इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर क्वेश्चन में क्रिटिकल एनालिसिस या लिमिटेशंस नहीं पूछी हुई तो आपने वो नहीं देनी अनलेस इट इज़ लाइक अ क्वेश्चन जिसके अंदर एक बिल्कुल ही वेग 1 लाइनर स्टेटमेंट है कि फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द लॉ, एक्सप्लेन ऑर्डिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मेजरिंग कंज्यूमर बिहेवियर. नाउ दिस इज लाइक एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप ऑर्डिनल यूटिलिटी में कौन कौन सी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे. क्या आपने उसमें कंज्यूमर की डिमांड को ड्राइव करके दिखाना है या नहीं दिखाना. हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब एक वेग स्टेटमेंट आ जाए तो उसके अंदर जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपकी उस क्वेश्चन के बारे में है आपने उतनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कोट करनी है बिकॉज अगेन इट इज़ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. इट डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. ईच स्टूडेंट ने क्या चीज़ कोट की हुई होगी बट ऑफ कोर्स द मोर द मेरियर. जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना बेहतर आपको स्कोर कर सकेंगे. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स एट मोस्ट में मैनेज करें. ट्राई कि आपका आंसर 40 मिनट से ऊपर ना जाए बिकॉज इवन इफ यू गो अप 5 मिनट्स आपके सक्सेसिव क्वेश्चंस 5 मिनट्स आगे जाते जाएंगे तो आपके लास्ट क्वेश्चन में यू वुड हैव बेरली 30 मिनट्स लेफ्ट. सबमिशन के टाइम का पैनिक होता है आपको, आपको डर होता है कि आपका सबमिशन टाइम से पहले कंक्लूजन कंप्लीट हो जाए. आप पैनिक में जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं. यू मिस पेजेस, आप पेजेस कम लिखने लग जाते हैं तो ओवरऑल आखिरी क्वेश्चन में वैसे ही पैनिक क्रिएट हुआ होता है. सो आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड कि आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन में मिसमैनेजमेंट करके अपने लास्ट क्वेश्चन में वो चीज़ कर लें. सो दिस इज मेनली कि अगेन जितनी आपकी ड्राइंग्स होंगी यहाँ पर आपके एग्जामिनर ने देखना है कि आपने अगर एजम्पशंस की हेडिंग दी है और यहाँ पर 4 एजम्पशंस कोट कर दिए योर एग्जामिनर वोंट रीड दोज एजम्पशंस. उन्हें ये होगा कि ओके आपने एक प्रॉपर वे में बेबी स्टेप्स लेके पहले एजम्पशंस बताई हैं, फिर आपने एक आईसी कर्व बना दिया, आपने नीचे जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन दी आपके एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा बट वो देखेगा कि दैट यू ट्राइड एक्सप्लेनिंग इट. आपने यहाँ पर लिखा होगा ना दिस फिगर या फिगर 1.2 एक्सप्लेन्स. दैट इज व्हाट योर एग्जामिनर इज गोना सी क्योंकि यू हैव एक्सप्लेन्ड इट. टेबल बना दिए उसके बाद आपने सक्सेसिव पेजेस पे जाके योर हेडिंग्स योर सब हेडिंग्स दैट इज एवरीथिंग दैट मैटर्स. बीच में यस ये नहीं कि आपने उन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना बट एट द सेम टाइम उन चीज़ों पे आपने इतना नहीं, उससे बहुत बेहतर है कि अगर आप अपने साथ साथ मेन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के ऊपर ध्यान दें. आई विल ओपन अप अ सैम्पल क्वेश्चन जिसके अंदर लेट्स गो थ्रू a question basically and let's break it down और उसके बाद फिर हम specific theories and models को किस तरह से कोड करके अपने मार्क्स को अपने मेनली अच्छे मतलब एक 70 प्लस ईच पेपर में किस तरह से ले जाना है. we'll go with that part as well.
Let me know if my screen is visible to you all. Perfect. The entire screen is visible, right? कोई कट तो नहीं हुई भी पूरा पेज नजर आ रहा है इस पे? Great. Okay. So going over one of the questions, which is regarding, this was one of our mock questions to students ने attempt किया था. One thing that I've noticed in evaluating a couple exams was that students थोड़ा सा introduction को सही से नहीं understand कर सकते और उस पे mess up कर रहे हैं. Introductions and conclusions, introduction at least examiner ज़रूर पढ़ते हैं because उसके अंदर एक किस्म का आप अपने answer का एक overview दे रहे होते हैं. That is the first conversation that you're having with your examiner. सो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने इस चीज़ को ज़रूर माइंड में रखना है कि आपने वो सारी चीज़ें उस तरह से एक्सप्लेन की हैं जो क्वेश्चन में पूछी हुई हैं या नहीं। उसके अलावा रेलेवेंट, इर्रेलेवेंट चीज़ें देने का फ़ायदा नहीं है। One thing about introductions that I would recommend is कि try incorporating the wording of your question within your introduction. So for a question like critically evaluate the law of diminishing marginal utility as the foundation of consumer demand theory. So इसके अंदर number one आपने LDMU को evaluate करना है. So that is one thing that आपके इस introduction के अंदर just a second. Okay. So number one, this is an important part of your question. This is the first thing that you've been asked in your question. Secondly, as the foundation of consumer demand theory, तो आपने यहाँ पर अपने LDMU की theory के अंदर consumer demand किस तरह से derive होती है? This is the second part that you have to explain in your question. Examine its conceptual relevance, empirical limitations, and explain how modern approaches address the shortcomings of LDMU in explaining consumer behavior. So अब आपके पास LDMU एक्सप्लेन करना है, LDMU के बाद उससे कंज्यूमर डिमांड किस तरह से डिराइव होती है ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है एंड उसकी रेलेवेंस एंड लिमिटेशंस देके सो रेलेवेंस में बेसिकली उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं एंड उसकी लिमिटेशंस को काउंटर करने के लिए कौन कौन सी और मॉडर्न थ्योरीज इस टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं जो कि सबसे पहले तो उसके साथ ही ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी आ गई थी जो बेसिकली उसको काउंटर करती हैं. सो देयर आर बेसिकली फोर पार्ट्स दिस क्वेश्चन एंड व्हाट यू हैव टू डू इज इन योर इंट्रोडक्शन आपने कोई इधर-उधर की बात नहीं करनी कि जी एलडीएम समटाइम्स व्हाट स्टूडेंट्स डू इज़ कि वो सिंपल एलडीएमयू से स्टार्ट कर देते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एलडीएमयू जो है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपकी कंज्यूमर बिहेवियर के लिए आती हैं और कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज़ सबसे पहले आपको बताती है यूटिलिटी. सो एक कंज्यूमर है, वो हर चीज़ में अपनी बेहतरी चाहता है, अपने प्रॉफिट को चाहता है, तो जब वो उस यूटिलिटी के ऊपर आता है तो वो अपनी यूटिलिटी का बेसिकली एक डिसीजन किन चीज़ों की बेसिस पे लेता है वो आपको कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरीज बताती हैं. उनमें से एक थ्योरी है कार्डिनल यूटिलिटी की जिसके अंदर आपको ये एलडीएमयू की आती है. सो देयर इज वन इंट्रोडक्शन दैट आई रोट जिसके अंदर you can write basically कि the attempt to understand consumer behavior lies at the heart of microeconomic analysis. So basically यहाँ पर आपने बता दिया कि जो LDMU है ये consumer behavior के related आपके यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है. यहाँ पर आपने consumer behavior को highlight कर दिया. The law of diminishing marginal utility एंड देन आगे ब्रैकेट में आपने LDMU लिख दिया है. इससे क्या होगा कि आप आगे जाके LDMU का एब्रीविएशन कहीं भी यूज करेंगे उस चीज पे आपकी मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे बिकॉज आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में या जहां पर फर्स्ट टाइम वो वर्ड यूज किए उसके साथ उसका एब्रीविएशन वहीं पर एग्जामिनर को बता दिया. इट इज रूटेड इन कार्डिनल यूटिलिटी ट्रेडिशन. सो अगेन इसी वर्डिंग के अंदर आपने बता दिया कि ये जो ओवरऑल आपका कंज्यूमर बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है एलडीएमयू का ये कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर आता है. Of early neoclassical economics has long served the theoretical foundation of the consumer demand theory. So again, जो बात उन्होंने की थी कि कंज्यूमर डिमांड थ्योरी को ये किस तरह से सपोर्ट करता है आपने बता दिया कि ये कंज्यूमर डिमांड थ्योरी को सपोर्ट करता है किस तरह से करता है वो हम आगे बताएंगे. By positing that additional satisfaction derived from successive units of a good declines as consumption increases. So this entire sentence is basically LDMU की definition. कि each successive unit of consumption से आपकी satisfaction decrease होती है. Law of diminishing marginal utility, आपकी utility diminish हो रही है. The law offers an intuitive explanation for the downward sloping demand curve. So यहाँ पर आपने again within this one sentence explain कर दिया है कि
इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट की वजह से आपको डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आप डिराइव कर लेते हैं। हाउएवर नाउ जो उसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछा हुआ है, टिपिकली व्हाट स्टूडेंट्स डू इज वो सिर्फ इतना पार्ट एक्सप्लेन कर देंगे जितना ये है, और इसी को ही वो बहुत ज्यादा ओवर वर्डी करके अपने इंट्रोडक्शन की लेंथ के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। आई फॉरगॉट टू मेंशन योर इंट्रोडक्शन शुड बी, अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपका जो फर्स्ट पेज होता है वो आपके हाफ लाइक 3/4 ऑफ अ पेज के बाद आपकी लाइन स्टार्ट होती है। योर इंट्रोडक्शन शुड बी एवरेज 3/4 ऑफ अ पेज। तो आपका इंट्रोडक्शन 3/4 ऑफ अ पेज से लेके मैक्सिमम 1 पेज जितना होना चाहिए, नॉट लेस देन दैट। हाफ ऑफ अ पेज का इंट्रोडक्शन है तो वो भी कम है, उससे ज्यादा का 1 पेज से ज्यादा का इंट्रोडक्शन है तो वो भी ज्यादा हो जाता है आपका। सो देन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, किसकी रेलेवेंस क्या है, एम्पिरिकल लिमिटेशंस क्या हैं, एंड मॉडर्न अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। While LDMU provides a logically coherent and pedagogically elegant framework, its explanatory power is constrained by strong behavioral, informational, and measurability assumptions. So, this part is basically saying इसकी relevance कौन सी है. So, relevance भी आपकी यहाँ पर टिक हो गई है, but constraints क्या आ गई हैं, इसकी limitations. आपने इतनी सी बातचीत में इसकी limitations भी यहाँ पर mention कर दी हैं. When you've mentioned these, then मॉडर्न अप्रोचेस को आपने हल्का सा बता देना है that with the evolution of economics towards ordinal utility, revealed preference theory, and behavioral approaches, the law's role has shifted from a foundational principle to simplifying abstraction. यहाँ पर आपने नहीं बताना ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, बिहेवियरल अप्रोचेस क्या है। यू जस्ट हैव टू से कि ये 3 नई अप्रोचेस हैं या ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिन्होंने इसको बेसिकली चैलेंज किया है और एक ऑल्टरनेटिव ऑफर किया है। दिस इज हाउ योर इंट्रोडक्शन शुड बी, दैट इज इट। कोई आपने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ नहीं लिखनी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने अक्सर ये चीज़ें चैट जीपीटी वगैरह से पढ़ी हुई होती हैं, दैट बिलो वी विल बी इवैल्यूएटिंग समथिंग अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नो, जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन के ईच पार्ट का आपने एक से दो सेंटेंसेस के अंदर आंसर एक ओवरऑल मेंड करके बना के उसको अपने आंसर के अंदर एक प्रेजेंट करना है। देन विद दिस क्वेश्चन, सो क्रिटिकली इवैल्यूएट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो अगेन आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ पर ये की कि नंबर 1 ये कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर आता है, नंबर 2 इट इज अ पार्ट ऑफ योर कार्डिनल यूटिलिटी, फिर उसके बाद आपने एलडीएमयू को एक्सप्लेन करने लगे। सो यू हैव मेड योर पॉइंट्स, यू हैव हैड योर ब्रेन स्टॉर्मिंग। फर्स्ट सब हेडिंग दैट यू आर गोना गिव आफ्टर योर इंट्रोडक्शन इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड कंज्यूमर बिहेवियर। तो आपने यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट एलडीएमयू पूछ लिया, बट आपने एक बैकग्राउंड भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, विच इज लोग जो कहते हैं कि आपने थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू दे देना है, एक एक्सप्लेन करना है कि यूटिलिटी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर किस तरह से, बिकॉज राइट नाउ थ्रू दिस स्पेसिफिक पार्ट यू कैन नॉट टेल कि ये कंज्यूमर बिहेवियर की बात हो रही है, ये कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, प्रोड्यूसर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। सो ओवर देयर व्हाट यू हैव टू डू इज आपने छोटा सा बेसिकली एक फ्लो चार्ट बना लें, किसी भी वे में बना लें। आपने लिख देना है कार्डिनल लाइक यूटिलिटी के ऊपर डेफिनेशन दे दी कि यूटिलिटी ये चीज होती है। देन आपने लिख दिया दैट देयर आर 2 अप्रोचेस टू मेजरिंग यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में एलडीएमयू का आपने लिख दिया, ऑर्डिनल अप्रोच में आपने बता दिया एमआरएस एंड इंडिफरेंस कर्व में नॉन क्वांटिफाइबल वे दिस एंड दैट। इन लाइक हाफ अ पेज कोई भी फ्लो चार्ट के अंदर ड्राइंग कर दी, उसको आपने नहीं भी प्रॉपरली लिख के एक्सप्लेन किया, सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ द basis that you're setting to start your answer. Once you've done that, then your third subheading is basically where the question starts. Evaluate the law of diminishing marginal utility as the foundation of consumer demand theory. So law of diminishing marginal utility, यहाँ पर आपने इसकी सब हेडिंग दी है। देन आपने बेसिकली आपकी अगर हेडिंग आ जाती है तो आपने इसके नीचे सब हेडिंग ये देनी है डेफिनेशन ऑफ एलडीएमयू। डेफिनेशन ऑफ एलडीएमयू देके आपने डेफिनेशन दे दी उसकी, आपने फिर लिख देना की अजम्पशंस ऑफ एलडीएमयू। उसके बाद आपने उसकी अजम्पशंस पॉइंट्स में दे दी हैं, डज नॉट मैटर, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी जब इन्होंने 4 चीजें आपसे यहाँ पर पूछ ली हैं, सो आप अजम्पशंस को नीचे वर्ड बाय वर्ड नहीं भी एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट वोंट मेक अ डिफरेंस। बिकॉज अगर आप इनको यहाँ पर कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी को भी एक्सप्लेन करने लग जाएंगे कि इसका क्या मतलब है, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। रैशनल कंज्यूमर होता है, अगर आप एक्सप्लेन करेंगे रैशनैलिटी क्या होती है, यू विल वेस्ट योर टाइम। सो आपने assumptions यहाँ पर लिस्ट कर दी एंड आपने उसके बाद इसको इलिस्ट्रेट करना है। नाउ गोइंग ओवर दैट कि फॉर स्टूडेंट जिनको भी नहीं आइडिया हो रहा कि इलिस्ट्रेशंस वगैरह क्या होनी चाहिए, आई हैव पुल्ड अप सम ऑफ आवर स्लाइड्स जो कि हमने क्लास में ऑलरेडी इस चीज़ के रिलेटेड कवर की हुई थी। सो व्हेन यू राइट योर assumptions ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, राइट नाउ दीज आर द assumptions जिनके आगे उनको सपोर्ट करके दिखाया हुआ है कि उनको आप किस तरह से फर्दर आपने आगे अगर एक्सप्लेनेशन देनी है तो किस तरह से देनी है। हाउएवर वी आर जस्ट राइटिंग कि उसमें रैशनैलिटी होती है,
मेजरेबिलिटी होती है, इंडिपेंडेंस होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वंस यू एक्सप्लेन दैट, आपने उसके बाद टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में, अभी आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे स्पेसिफिकली नहीं गए, आपने मार्जिनल यूटिलिटी बता दी है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। यू कैन मेक दिस टेबल, यू कैन मेक दिस ग्राफ, एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट। द नेक्स्ट पार्ट इज, आपने मार्जिनल यूटिलिटी कर्व यहाँ पर उनका बना के दिखा दिया है। नाउ आपने diminishing law of diminishing marginal utility को explain करना है। So this is where you come with LDM, you come for LDMU। आपने यहाँ पर इसकी इन्वेस्टोपीडिया की डेफिनेशन, अगर आप कोई डेफिनेशन स्पेसिफिकली कहीं की कोट करें तो उसको ज़रूर नीचे एक ब्रैकेट में, अगर डेफिनेशन है तो पेज के सेंटर में लिखनी है, और नीचे आफ्टर योर डेफिनेशन ब्रैकेट में टुवर्ड्स योर राइट कॉर्नर आपने ये लिखना है कि आपने वो डेफिनेशन कहाँ से कोट की है। सो इफ इट इज़ इन्वेस्टोपीडिया, इफ इट इज़ फ्रॉम अनदर वेबसाइट, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से है, कहीं से भी की हुई है, किसी रिसर्च पेपर से है, किसी स्पेसिफिक इकोनॉमिस्ट की है, जस्ट कोट देयर नेम ओवर देयर। उसके बाद आपने इसकी assumptions दे दी। देन आपने बता देना है, जिसमें यहाँ पर आ गया है कि इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर थ्रू इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अभी तक आप LDMU को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू आपने इक्विलिब्रियम किस तरह से अटेन होता है, दिस इज हाउ एवरीथिंग, यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तब मिलती है जब उनकी इनकम दैट दे स्पेंड ऑन दैट प्रोडक्ट, द लास्ट रुपी ऑफ देयर इनकम डिराइव्स फ्रॉम द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो वो किसी और गुड जिससे वो गिव अप करें उससे उतनी मिलती हो। सो आपने जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर दिया है, देन कम्स द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि कंज्यूमर डिमांड थ्योरी कैसे इसमें से ओरिजिनेट करती है। देन यू हैव टू राइट derivation of the demand curve through the law of equimarginal utility. Now, if you see here कि आपने यहाँ पर ईच जो हमारी हेडिंग्स आ रही है, मेनली दीज हेडिंग्स आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एंड मेजॉरिटी चीज़ें इस टाइम पे हमारी ड्राइंग्स के साथ हो रही है, हमारा रिटन काम तो कम, बहुत कम से कम चल रहा है इस टाइम पे। सो डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व थ्रू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अगेन यहाँ पर भी आप सिंपल लिखते हैं ना, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, थोड़ा सा वेग हो जाता। सो सिर्फ जस्ट बाय राइटिंग थ्रू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन्स कि आपको पता है कि आइडिया क्या है, द एग्जामिनर इज गोना रीड दैट पार्ट। नीचे आपने डिमांड कर्व बना के दिखा दिया, अगर उसके साथ कोई ना कोई टेबल बना दी है, वो करके दिखा दिए, दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू। एनीवेज, व्हेन यू गो टू दैट पार्ट, ये इक्विलिब्रियम आ गया इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। देन डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व थ्रू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यू कैन मेक अ डिमांड स्केड्यूल, यू कैन मेक दिस डिमांड स्केड्यूल के साथ जो यूटिलिटी का ग्राफ है उसको डिमांड कर्व में दिखाकर, इन वाइड स्लोप्स डाउनवर्ड। इफ यू सी, ऑल यू हैव टू राइट हियर इज, अगर ये इतना सा पार्ट ये गिवन है, सिर्फ ये चीज आपने यहाँ पर लिखनी है, इसके अलावा अभी तक लिखने का कोई ज्यादा काम ही नहीं आया। देन comes the third part of your question. Examine its conceptual relevance, empirical limitations, and explain how modern approaches. So again, your third part comes with relevance, limitations, and modern approaches. उसके अंदर empirical and conceptual limitations of LDMU, यहाँ पर आपने mainly इसमें बीच में the thing that's missing is their relevance. Basically कि relevance के अंदर आपने यही बात बता देनी है यहाँ पे कि लॉजिकली कोहेरेंट है, यूटिल्स के अंदर आप मेजर करेंगे ये चीज, बट अगेन वो रेलेवेंस के साथ साथ इसकी लिमिटेशंस में भी वो चीज आती हैं। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट देयर लिमिटेशंस, अगेन जो सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है वो आपका क्रिटिकल एनालिसिस है। यहाँ पर अब आपकी राइटिंग आ जाती है ज्यादा से ज्यादा। यू हैव टू गिव अ सब हेडिंग, कार्डिनल मेजरमेंट प्रॉब्लम है, एंड देन उसके नीचे आपने उसको पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन कर दिया। सिंस दिस इज एन आउटलाइन, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए, बट आपने बहुत ज्यादा पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखना। अनरियलिस्टिक बिहेवियरल assumptions हैं कि परफेक्ट रैशनल कंज्यूमर है, स्टेबल प्रेफरेंसेस इग्नोर की हुई कंज्यूमर की, सर्टेन कंजम्पशन पैटर्न्स इग्नोर किए हुए, फॉर एग्जांपल एडिक्टिव गुड्स के बारे में चीज़ इग्नोर हुई हुई है, प्रेस्टीज के बारे में, इनकम के बारे में, ये चीज़ें इसमें इग्नोर्ड होती हैं। या जो भी सेट्रस पैरेबिस की assumptions होती हैं इसमें, वो हमेशा सारी लिमिटेशंस में ही बात आ जाती है। And then what are the modern approaches in addressing the shortcomings of LDMU? ऑर्डिनल यूटिलिटी है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी है, वो जितनी थ्योरीज आपको पता है जो इसके चैलेंज में बेसिकली क्रिएट की गई थी, अब इसी के साथ एक ऑल्टरनेटिव ऑफर करती हैं, आपने उनके ऊपर मैक्सिमम एक एक पैराग्राफ, एंड बाय वन पैराग्राफ आई मीन लाइक 5 to 6 लाइन्स, वो चीज़ें लिखनी है। इफ यू राइटिंग अबाउट ऑर्डिनल यूटिलिटी, वो किसने दी वो यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी की थ्योरी, और उसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या चीज़ आती है। आपने इंडिफरेंस कर्व लिख दिया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिख दिया, दैट इज इट। यू डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन कि वो क्या है, वो किस तरह से डिराइव होती है। आपने सिर्फ बता दिया दैट ये एक थ्योरी ऐसे चैलेंज के इवॉल्व हुई थी, एंड देन योर एट्थ सब हेडिंग इज बेसिकली, योर हेडिंग इज कंक्लूजन। अगेन, क्योंकि अब आपके पास इस टाइम पे टाइम नहीं मैनेज हो रहा होता, आपका इंट्रोडक्शन अगर 3/4 ऑफ अ पेज था, तो आपका कंक्लूजन कैन बी हाफ ऑफ अ पेज। हाफ ऑफ अ पेज को देखिए, यू राइट योर कंक्लूजन, एंड दैट इज हाउ यू बेसिकली रैप अप योर आंसर।
सो इस तरह से व्हेन यू एक्सप्लेन, ये आपकी ग्राफ्स आ जाएँगे अगेन, वो तो ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर आ गई। व्हेन यू राइट मेक योर ग्राफ्स एंड एवरीथिंग, दिस इज़ हाउ यू कैन अप्रोच अ क्वेश्चन। वन थिंग अगेन, द मेन थिंग इज़ कि आपके इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी रेलेवेंट टू व्हाट द क्वेश्चन इज़, एंड उसके बाद आपके ओवरऑल जो आप हेडिंग्स दे रहे हैं, सब हेडिंग्स दे रहे हैं, वो क्वेश्चन की वर्डिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्वेश्चन की वर्डिंग को फॉलो कर रहे हैं। सो अगर क्वेश्चन की वर्डिंग में था कंज्यूमर डिमांड थ्योरी, तो यहाँ पर अगेन हमने वही चीज़ की है, डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व या डेरिवेशन ऑफ कंज्यूमर डिमांड थ्योरी थ्रू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर अगर लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर एम्पिरिकल लिमिटेशंस, तो यहाँ पर भी आपने लिख देना एम्पिरिकल एंड कंसेप्चुअल लिमिटेशंस ऑफ एलडीएमयू। क्वेश्चन में था मॉडर्न अप्रोचेस टू एड्रेस द शॉर्टकमिंग्स, मॉडर्न अप्रोचेस एड्रेसिंग द शॉर्टकमिंग्स। सो जो क्वेश्चन के अंदर से ही आपने अपनी सब हेडिंग्स को डिराइव करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से, उससे सबसे ज्यादा आपकी क्या चीज मैटर करेगी, दैट वुड बी योर रेलिवेंसी, कि आपका आंसर इज रेलिवेंट। एंड ये नॉट ओनली फॉर इकॉन, आपके बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी रेलेवेंसी यहीं पर रहती है जब आप क्वेश्चन की वर्डिंग में से ही अपनी सब हेडिंग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। Don't go for too fancy words. Don't go for extra philosophical or literary style words. स्पेसिफिकली सब हेडिंग्स के अंदर जो मेन आपकी हेडिंग्स आ रही हैं उनके अंदर जरूर क्वेश्चन के थ्रू ले लें। उसके बाद जिस तरह की आपकी ये वाली बात आ जाती है कि अनरियलिस्टिक बिहेवियरल assumptions है, इसको आप जिस तरह से भी लिटरेरी फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, जैसे भी लिखना चाह रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर। बट एग्जामिनर ने आपकी या ये बातें या इनके अलावा ये जो ये चीजें पढ़नी है, इसके अलावा और कोई चीजें नहीं है आपकी पढ़नी। मतलब depends on the examiner, but typically examiners do not read them because वो देख लेते हैं कि आपकी अप्रोच ठीक है, you know the information। जी, ये आउटलाइन आई कैन शेयर, स्टूडेंट्स जिनके साथ जो रजिस्टर्ड है उनके साथ आई कैन शेयर इन द ग्रुप। फॉर यू कैन आइदर टेक्स्ट सर उस्मान के कोऑर्डिनेटर and they can share my contact with you. Otherwise, if you want to take screenshots of it, तो वो मैं zoom out कर लेती हूँ, you can take a screenshot. So this is how you should be approaching a question. Now what comes is that कि ये तो आपने एक ओवरऑल एक क्वेश्चन का माइंड में रख लिया कि क्वेश्चन किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। मेनली आ जाती है बात कि ओवरऑल स्कोरिंग कहाँ से करनी होती है आपने इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर। तो उसके लिए आई हैव कंपाइल्ड सम थ्योरीज एंड सम मॉडल्स स्पेसिफिकली फॉर पेपर 2 क्वेश्चंस। नाउ लेट मी पुल अप पेपर 2 जो हमने क्लास में डिस्कस किया था एज आवर मॉक एग्जाम, एंड दीज वर द क्वेश्चंस। ओके, सो पेपर 2 सिंस इट्स इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, नंबर 1 मेनली ऑलमोस्ट एवरी ईयर पेपर 2 के अंदर आपके इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होता है। वो अब इस तरह 2025 में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन रिपीट हुआ था इन अ वे दैट आपने आई थिंक मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ डेवलपमेंट देनी थी। लेट मी जस्ट पुल अप 2025 का एग्जाम सो वी कैन सी कि ओवरऑल उसके क्वेश्चन पेपर में क्या था। यू कैन हैव एन आइडिया कि एफपीएससी की वर्डिंग स्पेसिफिकली इसमें क्या आई थी। ऑल्सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड, पेपर 2 के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो थोड़े से सिंस थियोरेटिकल पेपर 2 उनके बहुत ज़्यादा यू कैन नॉट फाइंड द राइट आंसर टू दैट, तो यू कैन जस्ट आंसर देम ऑन द बेसिस ऑफ योर रीजनिंग। देयर वर सम क्वेश्चंस इन दिस एग्जाम, for example, Pakistan's economy is categorized as low income developing economy, upper middle income economy, low middle income developing economy, none of these. Again, water scarcity in Pakistan is primarily caused by mismanagement of water resources, population growth and urbanization, climate change impacts, and uh, all of these. So ये कुछ questions ऐसे होते हैं जिसमें you do not have a specific answer, depends on the key कि आपके examiner की key क्या कहती है। Now पाकिस्तान में बेसिकली आपका वाटर स्कार्सिटी मिसमैनेजमेंट से भी होती है, क्लाइमेट चेंज से भी हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ से भी हो रही है, बट ऑल ऑफ दीज भी कर सकते हैं, बट यू नेवर नो कि आपके एग्जामिनर की की में इसका क्या आंसर था। सो एट दैट टाइम जो भी आपने अपनी मैक्सिम तैयारी के साथ आप गए हुए होते हैं, जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है या इस तरह की चीज़ें, आई वुड से कि इस टाइम पे सर्च कर लें पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की जो मेन उनकी एग्जेक्टिव समरी है उसके अकॉर्डिंग, उनमें कभी कभी ये चीज़ें मेंशन हुई भी होती हैं, उनमें से समटाइम्स एमसीक्यूज उठाए हुए होते हैं। सो इन क्वेश्चंस को आपने उन जगहों से ज़रूर प्रिपेयर करना है
क्योंकि वहां से आइदर इनके आंसर्स डिराइव होते हैं और देयर जस्ट योर बेस्ट शॉट के जो भी आपको इस चीज पे लग रहा है। ऑब्जेक्टिव्स फॉर बोथ पेपर्स, ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट दैट टफ। अगर आप 2025 के ही ऑब्जेक्टिव्स देख लें तो आई थिंक फॉर माई स्टूडेंट्स व्हेन वी यूज्ड टू हैव मॉक्स, जो हमारे सेशन के स्टूडेंट्स होते थे उनको ईच मॉक्स के साथ में ईच मॉक के साथ वी यूज्ड टू हैव टू फॉर पेपर वन, टू फॉर पेपर टू एंड देन टू फुल लेंथ पेपर्स। सो उसके लिए व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज के आई यूज्ड टू गिव देम 25 ऑब्जेक्टिव्स पर क्वेश्चन। वो डिफरेंट बुक्स में से मैंने निकाले हुए होते थे, मैनकेव की बुक में से, जो ट्रेड की रुडारो की बुक्स हैं उनमें से, सम ओल्ड पेपर, सम ओल्ड बुक्स एज वेल, बी कॉम की जो बुक्स होती हैं पाकिस्तान में। आई यूज टू गैदर एमसीक्यूज फ्रॉम देयर एंड देन जस्ट शेयर इट विद द स्टूडेंट्स। आई विल ट्राई क्रिएटिंग एन एमसीक्यू बैंक, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस कि वो टाइमली अगर क्रिएट हो जाएगी, इफ वी कैन शेयर दैट फॉर एवरीबडी हु इज इन सर उस्मान्स कम्युनिटी। तो वहां पर you can have like an idea of these MCQs, but overall MCQs are not that tough. Paper one के जो MCQs होते हैं वो ज़रा theoretical based होते हैं. Do go and see 2025 के MCQs. Paper two के everything was very generic. Which of the following is a major constraint of Pakistan's industrial growth? तो again ये वाले सारे questions very very basic questions जो even आपके एक पाक एंड करंट अफेयर वाले स्टूडेंट से भी easily आप attempt कर सकते हैं. Anyways, सो SDGs को ज़रूर प्रिपेयर कर लें कि ईच SDG का कौन सा मोटिव है। सो जिस तरह पे यहाँ पर आया हुआ था दैट विच SDG इज पर्टिकुलरली चैलेंजिंग फॉर पाकिस्तान गिवन इट्स एनर्जी मिक्स एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। सो अगेन these are the things जो कि थोड़ी सी that I said are very a little generic paper 2 के MCQs के अंदर। so when you see them you don't have to panic because इसमें you cannot do anything, every single person is at the same seat doing the same thing. So for the question regarding economic growth and development, आप recent 5 to 6 years की भी questions देखेंगे। That is a good question. That should you avoid all of these? Because typically, again, if you see this question जो भी हमने यहाँ पर भी देखा है, um, even which of the following is a major constraint on Pakistan's industrial growth? अब हमारे पास skilled labor का भी issue है, energy shortages भी हैं, weak infrastructure भी है, all of these भी है, but वीक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नहीं इम्पैक्ट करता। स्किल्ड लेबर के साथ साथ क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ थोड़ी सी इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जाती है तो भी, सो आई वुड से योर बेस्ट शॉट कुड बी एनर्जी शॉर्टेजेस, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेजर कंस्ट्रेंट है आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। अगर कुछ इसी तरह के आपके और भी रेलेवेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं तो आप ऑल ऑफ दीज करते हैं, अदरवाइज उस टाइम पे जो आपको विद योर highly extensive prep at that very moment, I believe I did energy shortages over there. I got, I think 72 in paper 2 and 70 in paper 1. So I believe ठीक ही हुआ होगा जो भी यहाँ पर हुआ था. I cannot remember. I don't have the key for them right now. Uh, Anyways, so question 2 जो आपके paper 2 का आता है वो typically आपका economic growth and economic development के ऊपर ही आता है. So critically evaluate why Pakistan's economic growth has been inconsistent over the decades. Number one, economic growth हमारी क्यों नहीं हुई? Again, पाकिस्तान में जो जो सारे issues हैं, very generic question. How do political stability and governance quality influence long-term growth prospects? So इस क्वेश्चन के लिए now one thing is कि you would think कि इसको एक इकोनॉमिक वे में इस तरह से अटेम्प्ट करना है। Now what happens is typically students जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो इसके एक ओवरऑल जेनेरिक पॉइंट से देंगे कि वो इनकंसिस्टेंट इसलिए रही हुई है क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं ठीक कर सक रहे, हमारी लिटरेसी रेट नहीं ठीक जा रही, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है कंट्री के अंदर, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है कंट्री के अंदर। सो दीज आर द जेनेरिक पॉइंट्स। हाउ डू यू मेक श्योर कि आप इसको एक इंटीग्रेटेड आंसर बनाए कि आपका इकोनॉमिक आंसर लग रहा है, स्पेसिफिकली इन पेपर 2, दैट इज वेयर योर मॉडल्स एंड इकोनॉमिक थ्योरीज कम इन टू प्ले। एंड फॉर दैट आई हैव कंपाइल्ड दीज मॉडल्स एंड ईच मॉडल कौन कौन से ओवरऑल मेन सब हेडिंग के ऊपर लग सकते हैं, आई हैव रिटन ऑल ऑफ दैट एज वेल एंड आई विल जस्ट शेयर दैट इन अ सेकंड। And how do political stability and governance quality influence long-term growth prospects? Again, for such a question, आपने maximum 4 to 5 pages बस causes के ऊपर आपने basically देने and 4 to 5 pages आपने इस part के ऊपर देने। Equal division रखनी है आपने दोनों में because both parts carry 10 marks each. So यहाँ पर how do political stability and governance quality influence long-term growth prospects? इसके ऊपर आपने बता देना कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से करप्शन आती है, नेपोटिज्म आ जाती है, एरिस्टोक्रेसी आ जाती है, मेरिट एरोड होता है, गवर्नेंस क्वालिटी की वजह से ओवरऑल गवर्नमेंट का आपके रिसोर्सेज नहीं ठीक से डेवलप हो रहे होते, आपकी रीन्यूएबल की तरफ नहीं आप जा रहे होते, लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आपके अचीव नहीं हो रहे होते, आपके जो 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान होते हैं। नाउ हाउ अगेन इकोनॉमी इसमें कहाँ से आएगी? यू कैन गो टू द पास्ट।
हिस्ट्री में जाके जितने हमारे 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स थे, यू कैन पिक अप कि जब जब हमारी इनकंसिस्टेंट गवर्नेंस थी, हमारी गवर्नेंस क्राइसिस चल रही थी कंट्री में, हमारे उनमें से इकोनॉमिक प्लान्स में से कुछ स्पेसिफिक ऐसे इकोनॉमिक प्लान्स थे जिनका बिल्कुल भी टारगेट अचीव नहीं हुआ था। यू कैन कोट दोज एग्जाम्पल्स। नो, दोज आर दीज दोज एग्जाम्पल्स जो एक आम करंट एंड पाक अफेयर के स्टूडेंट को नहीं पता होंगी ये बातें। दैट बेसिकली शोज कि नाउ यू नो कि पाकिस्तान की ओवरऑल ग्रोथ की और हर चीज की सारी एक इंफॉर्मेशन किस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं इस चीज के अंदर। सो अगेन, गवर्नेंस क्वालिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाली चीज को फिर इसके साथ व्हेन यू कोट दीज मॉडल्स, व्हेन यू कोट पाकिस्तान हिस्ट्री, गो टुवर्ड्स इंटरनेशनल कंट्रीज। सम कंट्रीज जहां पर गवर्नेंस क्वालिटी बेहतर होने से ओवरऑल बेहतर हुई है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नेंस क्वालिटी ठीक हुई है, चाइना में उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व की है, उनकी ग्रोथ बेहतर हुई है, जापान में हुई है, अदर नॉर्डिक कंट्रीज के आप एग्जाम्पल कोट कर दें। सो इस तरह से आपने डिफरेंट कंट्रीज की एक ओवरऑल इंटीग्रेटेड एग्जाम्पल्स के साथ उसको जब पोर्ट्रे करेंगे तो आपका आंसर एक वेल comprehensive and analytical answer रहेगा, rather than just writing slide points like an essay कि corruption होती है, nepotism होती है। उनको आपने मैक्सिमम थ्योरीज, मैक्सिमम कंट्रीज की एग्जांपल्स के साथ, मैक्सिमम पाकिस्तान की हिस्टोरिकल एग्जांपल्स के साथ इंटीग्रेट करना है। Short note questions, maybe you need to attend them with graphs. Paper one के ऊपर I'll go back once we go over paper two, and I'll show you some short note questions. इनको कौन कौन से graphs में हम integrate कर सकते हैं, and let you know about that as well. Some questions are mathematical in nature. So mathematical questions rare होते हैं paper one में. If we pull up overall just time पे 2025 पे ही paper one था. Let me share it. So if you see it over here, हाउ कैन अ कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच। तो अभी हमने एक ओवरऑल पूरा आंसर कार्डिनल अप्रोच के ऊपर किया है, तो उसी को ही अगर आप ऑर्डिनल अप्रोच में ले जाएं तो इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच किस तरह से अटेन होता है। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग इनकम and prices. So again, changing income is one thing, changing prices is another thing. On consumer equilibrium in case of normal good and inferior good. तो इसमें अब आपने क्या चीजें करनी है, you have to write 4 things. Changing income का impact on a normal good, changing income का impact on an inferior good, changing price का impact on a normal good, changing price का impact on an inferior good, and this is the second part. पहले part में आपने पूरा ordinal approach भी साथ explain करनी है. So I think this is easily that you can expand it to up to 12 pages अगर आप, because आपने again बार बार income change हो रही है, आपने graph के ऊपर करके दिखानी है, नीचे hardly 2 to 3 lines में explain कर देनी है. प्राइस चेंज हो रही है, नॉर्मल गुड पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ग्राफ पे बना के दिखा देनी है, मैक्सिमम चीजें ही आपकी ग्राफ पे आ गई. देन व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस यूजिंग स्केड्यूल एंड डायग्राम. सो अगेन मैथमेटिकल कोई चीज नहीं है इसमें, आपने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या क्या है, दिस बेसिकली थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, एंड उस चीज के ऊपर आपने इसको आंसर करना है. Again, explain the circular flow of national income in a 2 sector, 3 sector, and 4 sector economy. Discuss the methods by which national income can be measured. Also explain the advantages and shortcomings of each method. So again, the first part is circular flow of income in a 2 sector. So आप अगर 2 sector को भी आप 1.5 पेज में explain कर रहे हैं, 3 sector को कर रहे हैं, फिर 4 sector को कर रहे हैं, आपने इनके flow charts बनाए हुए हैं, you're making those over there. And then discuss the methods. So now this is a completely different question. मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट मेथड, ये सारे मेथड्स जो हैं वो तीनों आपने एक्सप्लेन कर दिए. ईच मेथड के ऊपर स्टूडेंट्स को मैंने टिपिकली ये सजेस्ट किया हुआ है कि आपने उसको मैक्सिमम एग्जाम्पल्स के साथ उस मेथड को आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है, कि अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं तो आपने उसकी पूरी एग्जाम्पल वहाँ पर एक्सप्लेन करनी है जिस तरह से हमने अपनी क्लास लेक्चर्स में कवर की हुई है. एंड देन दिस वॉज द सेकेंड पार्ट, also explain the advantages and shortcomings of each method. तो ये आप each method जब यहाँ पर बता रहे होंगे उसके नीचे ही advantages and उसके shortcomings साथ ही explain कर देनी है. So again, this is a question that can be easily expanded to 8 to 10 pages. Again, explain the quantity theory of money and elaborate significant ingredients for effective monetary policy to accelerate economic growth in developing countries. So QTM यहाँ पर आपने explain कर दी कि QTM क्या है. Again, this part is a specific question कि मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से आपके बेसिकली टूल्स हैं. मॉनेटरी पॉलिसी में नंबर 1 इज योर मनी सप्लाई, नंबर 2 इज योर एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट. तो इन चीज़ों को आपने किस तरह से इम्पैक्ट करना है. टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है आपने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सप्लेन करनी है, कॉन्ट्रैक्शनरी नहीं यहाँ पर एक्सप्लेन करनी.
इन डेवलपिंग कंट्रीज ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है कि आप उन कंट्रीज की बात करें जो कि इस टाइम पे जिनका इंटरेस्ट रेट, जिनका इन्फ्लेशन रेट सही से स्टेबल नहीं है. सो अगेन, this is also more of an explanatory question. Explain different canons of taxation. जो canons थे एडम स्मिथ के, वो आपने आप explain कर दिए, traditional कर दिए, modern कर दिए. How can these canons be used optimally? तो इनको किस तरह से, and then पाकिस्तान के लिए policy options to maximize tax revenue in a developing country like Pakistan. So अगर आप 5 pages पे almost different canons, अगर आपके पास 6 to 8 canons भी mind में हैं, आप उनको भी मतलब एक दो कैनन्स को पर पेज लिखेंगे, सो यू कैन इजीली एक्सपैंड टू 8 पेजेस. अगेन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन हमने पेपर 2 के अंदर भी देखा है कि व्हाई पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन इनकंसिस्टेंट ओवर द डेकेड्स, एंड वही चीज उसी साल उस आपके मॉर्निंग पेपर में पेपर 1 के अंदर भी आई है. डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट by discussing the traditional and modern measures of growth and development. So traditional measures कौन कौन से थे, modern कौन कौन से आ गए, HDI आ गई, सारी चीज आ गई, growth के कौन कौन से थे, so on. Write short notes on any 4 of the following. So this is where the short note question comes. एक्सेलरेटर प्रिंसिपल, यहाँ पर भी आपके पास एक्सेलरेटर प्रिंसिपल में आपने यहाँ पर मैथमेटिकल डेरिवेशंस नहीं दिखानी है. मैथमेटिकल डेरिवेशंस पीएमएस में ज्यादा आती हैं. पीएमएस का जो पेपर 2 है दैट इज ऑल मैथ, एंड वो सिलेबस आपका पेपर सीएसएस का पार्ट नहीं है. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो चीजें आप यहाँ पर शो करें. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर अगर आपने शॉर्ट नोट लिखना है, आपने इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर बता देना है कि उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको किस तरह से आपने इंटीग्रेट करना है. पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट के आपने बीच में एग्जांपल्स दे देनी है, डेफिसिट किस तरह से हो जाता है, उसको करेक्ट किस तरह से किया जाता है. नाउ अगेन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नाउ यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट. हाउ डू यू हैव टू स्टार्ट विद इट, एचडीआई का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें कौन कौन से मेट्रिक्स आते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इफ देयर इज एनी एचडीआई, क्या क्या चीज शो करता है कंट्री की, एचडीआई की लिमिटेशंस क्या है. सो दिस इज हाउ शुड बी योर ओवरऑल अप्रोच फॉर अ क्वेश्चन जिसमें अब आपको नहीं पता कि एक शॉर्ट नोट लिखना है तो क्या क्या चीजें लिखनी है उसमें. अगेन, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट गुड्स. पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं, प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं, फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है, पब्लिक गुड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्राइवेट की क्या हैं, एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं, क्यों गवर्नमेंट इंटरवीन करके पब्लिक गुड्स को क्रिएट करती है. फिर इसके बाद अगेन इनकी जो एक और बाकी सारी, सो एवरीथिंग दैट यू नो अबाउट इट, उसको बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग आपने उसको एक प्रॉपर वे में ड्राफ्ट जरूर कर लें ताकि आपकी रेलिवेंसी इन कोहेरेंस रहे आंसर में. ये ना हो कि आप पहले पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड का कंपैरिजन टेबल बना दें एंड देन 2 पेजेस लेटर यू रियलाइज दैट ये इस तरह से नहीं लिखना चाहिए था, आई कुड हैव रिटन इट इन अ डिफरेंट वे. एट दैट पॉइंट यू कैन नॉट क्रॉस एनीथिंग आउट, you cannot go change everything that you wrote 2 pages before. So once you have an outline of your entire answer, you would know कि आपने किस तरह से उसको overall answer के अंदर लेके चलना है. Critical evaluation like the one in P2. Can you tell me what question are you talking about? जिसके लिए headings and subheadings का पूछा है. Okay, so going back to paper 2, जिसमें I was talking about economic theories and basically जो सब हेडिंग्स किस तरह से बीच में आपने इनकॉर्पोरेट करनी है, कंट्रीज को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है. सो क्वेश्चन नंबर 4. ओके, I'll come back to that one just a second. So for this question, critically evaluate why Pakistan's economic growth has been inconsistent over the decades. How do political stability and governance quality influence long-term growth prospects? Now, for these questions, I have this overall document created, जिसको आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने different models incorporate किए हुए हैं. So कोई भी economic growth and development के related question आता है, you can incorporate any of these models in your answer ताकि एक आपका answer economic type answer लगे. So Soros one model, basically we have the idea कि आपकी exogenous technological progress की वजह से, capital accumulation वगैरह की वजह से आपकी diminishing return आती है, आपको technology overall अगर आप बढ़ेगी आपकी कंट्री की तो उससे आपकी कंट्री में एक सस्टेन्ड ग्रोथ आएगी. सो अगर आप इतनी सी स्टेटमेंट भी कि अकॉर्डिंग टू द सोलो स्वान न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, सस्टेन्ड ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज ओनली पॉसिबल थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ओनली आप इतनी सी बात भी लिख देंगे एंड पाकिस्तान इस चीज को अपने अंदर इंटीग्रेट कर ले, या डेवलपिंग कंट्रीज टेक्नोलॉजी को बेहतर कर लें अपने अंदर, इस तरह से अपनी साइबर को बेहतर कर लें, यूथ को बेहतर कर लें, आईटी के पोटेंशियल को यूटिलाइज कर लें. ओनली कोटिंग द नेम ऑफ इट वुड बी इनफ कि आपने यहाँ पर एक इकोनॉमिक थ्योरी इंटीग्रेट कर दी है. देन रॉस्टो के 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ होते हैं.
traditional take off, drive to maturity, and age of high mass consumption. So, according to this, development जो है वो एक linear transition है from a traditional society to mass consumption. यहाँ पर पाकिस्तान की ओवरऑल हिस्टोरिकल ग्रोथ आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम से अपनी टेक ऑफ वाली पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू रॉस्टर स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान currently stands at the take off situation. Drive to maturity या age of high mass consumption हमारी इसलिए नहीं अटेन हो रही क्योंकि हमारी इस टाइम पे पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है. तो यहाँ पर आपने इसका एक अगर छोटा सा फ्लो चार्ट ही बना लें और उस फ्लो चार्ट के अंदर ये सारी चीजें बना दें दिखा दें कि पाकिस्तान इस टाइम पे यहाँ पर है, तो अगेन आपके एक पेपर 2 के आंसर के अंदर एक इकोनॉमिक थ्योरी आ जाएगी. एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी अगेन कि growth is generated within the economy through knowledge spillovers, education and innovation, एंड देयर नो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू नॉलेज. तो अगेन इसमें कि टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के साथ साथ आपकी ह्यूमन कैपिटल एंड इनोवेशन भी आपकी ग्रोथ को डिराइव करती है. हायर डोमर ग्रोथ मॉडल भी इसी तरह आपका आ जाता है. सो ये सारे मॉडल्स हैं जिनको आप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कोट कर सकते हैं. देन कम्स स्ट्रक्चरल चेंज एंड सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन. सो क्वेश्चन आ जाता है कि जी इंडस्ट्रियल पाकिस्तान में इंडस्ट्री हमारी इस टाइम पे क्यों नहीं सही से चल रही, तो उसके लिए आप बता सकते हैं, आप आर्थर लुई मॉडल को कोट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्थर लुई मॉडल के एग्रीकल्चर में जो आपके पास एक्सेस लेबर होती है उसको आपको इंडस्ट्री के अंदर यूटिलाइज करना चाहिए. एंड देन इसका आर्थ लुई टर्निंग पॉइंट आता है एंड एवरीथिंग. यू हैव ग्राफ्स फॉर दीज, सो आप इसमें आप ग्राफ्स दिखा सकते हैं. सरप्लस लेबर को आप यूटिलाइज करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन है तो उसमें आप ये मॉडल कोट कर सकते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, सरप्लस लेबर है कंट्री के अंदर, पाकिस्तान इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, अपनी अनएम्प्लॉयड लेबर को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में शिफ्ट करे अकॉर्डिंग टू व्हाट आर्थर लुई एक्सप्लेन्ड. So similarly, आपके पास all right, I will share them. कजनेट का सेक्टोरल शिफ्ट हाइपोथेसिस आ जाता है. सो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर टू हाई प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री एंड सर्विसेज. इन चीज़ों को आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं. कजनेट्स इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस. सो यहाँ पर जो कजनेट का इन्वर्टेड यू शेप में जो कर्व बनता है उसको आप इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर आप जो जीनी कोएफिशिएंट है और उसकी लाइन को ड्रॉ करके बता सकते हैं. रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को ड्रॉ कर सकते हैं. पावर्टी, अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी के रिलेटेड आप विशियस साइकिल ऑफ पावर्टी बाय नर्क्स इनको कोट कर सकते हैं. बिग पुश थ्योरी क्या आ सकता है, डिपेंडेंसी थ्योरी. सो आप एक दफा, दो दफा, तीन दफा ये मॉडल्स पढ़ेंगे ना तो आपको ये मॉडल्स ऑलरेडी आपके माइंड में इंटीग्रेट हो जाएंगे. एंड दीज आर अ लॉट ऑफ मॉडल्स. आप पर क्वेश्चन एक या दो भी कोट कर देंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 4, तो आपके लिए 8 मॉडल्स भी इस टाइम पे इनफ है याद करना. ऑल यू हैव टू डू इज कि आपने पढ़ना है कि ओके ग्रोथ के रिलेटेड ये 2-3 मॉडल्स आपके माइंड में, इनको आपने वहाँ पे कोट कर लेना. एंड ट्राई कि अगर एक क्वेश्चन में आपने कोई एक ग्रोथ का मॉडल कोट कर दिया तो उसको सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेम मॉडल को ना रिपीट करें, कोई नया मॉडल दें ताकि एक एग्जामिनर को रिडंडेंसी ना लगे कि आपको बस एक ही मॉडल पता था और आप हर जगह उसी को इंटीग्रेट करने की कोशिश करें. सो सिमिलरली अगर आपके पास टैक्सेशन के ऊपर आ जाता है तो आप इसमें लैफर कर्व ड्रॉ कर सकते हैं. ट्रेड इंडस्ट्री ग्लोबलाइजेशन के ऊपर यू हैव द एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल. पाकिस्तान में इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, तो ये सारी आप हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दे सकते हैं. सिमिलरली अगेन पेपर 2 के अंदर ही आपके कि आप ये तो हो गए मॉडल्स जो आप डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के नामों के हैं. अगेन इकोनॉमिक थ्योरीज को बीच में किस तरह से लाना है, उसमें आपके पास केंजियन क्रॉस है, मल्टीप्लायर मॉडल है. अब क्या होगा मल्टीप्लायर मॉडल में, यू कैन एक्सप्लेन कि इनिशियल इंक्रीज इन स्पेंडिंग लीड्स टू मल्टीपल इंक्रीज इन नेशनल इनकम डिपेंडिंग ऑन द एमपीसी. तो ये मल्टीप्लायर का मॉडल आप यहाँ पर इतना सा भी लिख देंगे कि केन्स का मल्टीप्लायर इट डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ फिजिकल एक्सपेंशन. सो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन था कि मॉनेटरी एक्सपेंशन, फिजिकल एक्सपेंशन के पहले लास्ट ईयर क्वेश्चन है मॉनेटरी के ऊपर, इस ईयर अगर फिजिकल पे आता है तो आप उस पर सिर्फ आपने केन्स का ये मॉडल कोट करना है कि अकॉर्डिंग टू केन्स मल्टीप्लायर इफेक्ट फिजिकल एक्सपेंशन हल्की सी भी, मतलब अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी, लोगों के पास कंजम्पशन के लिए पैसा ज्यादा आ जाएगा या कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के ऊपर एक मल्टीप्लाइड इफेक्ट आएगा और इकोनॉमी बहुत जल्दी से स्टिमुलेट करेगी. सो इतना जस्ट वन पैराग्राफ एंड अ ग्राफ ऑफ इट वुड बी इनफ टू शो दैट यू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स. इन अगेन केन्स का एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस आ गया है या आपकी सेविंग्स वगैरह के रिलेटेड है. परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है फ्रीडमैन की, इसको आप कोट कर सकते हैं. एक्सेलरेटेड प्रिंसिपल है. एंड देन अगेन दीज आर सम ऑफ द टर्म्स जिनके ऊपर शॉर्ट नोट क्वेश्चंस भी पूरे पूरे बन सकते हैं. सो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे यू डू नॉट नो व्हाट एक्सेलरेटेड प्रिंसिपल इज, इफ यू गो बैक एंड सी पेपर 1 बेसिकली पूरा एक्सेलरेटर प्रिंसिपल इस क्वेश्चन पे आया हुआ है. एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन फॉर अ क्वेश्चन जिसमें आपने 4 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, योर
each of your short notes should be about 3 pages at most. इससे ज्यादा का नहीं जरूरत, because when you 5 marks का each है, 3 into 4 is like 12 pages, आपका एक आंसर ओवरऑल 10 pages का भी 20 मार्क का आंसर होना चाहिए। तो आपका 20 मार्क का आंसर का आप 2.5 to 3 पेज भी लिख देंगे इसके ऊपर, सो दैट वुड बी मोर देन इनफ। जिस तरह का आप एक जीएसए का क्वेश्चन, अपना साइंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उतनी लेंथ हो तो इट्स वेल एंड गुड। सिमिलरली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर की थ्योरी कौन सी थी, कैम्ब्रिज थ्योरी कौन सी थी, ये सारी चीजें, मॉनेटरी थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, Phillips curve को you can quote it anywhere wherever you want to again. So these are Ricardian equivalence क्या होगी है, Ricardo's comparative advantage, Adam Smith का absolute advantage, crowding out effect, ये word तो अगर आप अपने पाक अफेयर के पेपर्स में भी कोट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इस पे अच्छा स्कोर मिल सकता है, because that is what is happening in Pakistan के when the government is already in a debt और वो प्राइवेट बैंक से जाके खुद बोरो कर रही है चीजें, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लोगों, इन्वेस्टर्स के पास, बैंक्स के पास पैसा ही नहीं रह गया, उनको लेंड आउट कर रही है, तो क्राउडिंग आउट हो रही है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर्स कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर सक रहे हैं। तो क्राउडिंग आउट ये चीज आप करंट एंड पार्क फिर भी यूज कर सकते हैं। Then there are different monetarist models, new classical models, so on and so forth. So these are the models जिनको मैंने ओवरऑल कंपाइल किए, and I will share them, जिनको आप mainly अपने पेपर के अंदर कोट कर सकते हैं to basically show that your question is um, your question basically reflects your economic knowledge, और कि उसके ऊपर आपको और किस तरह से थ्योरीज वगैरह रखनी है, जो कि मेनली स्टूडेंट्स को एक इशू आ रहा था कि पेपर 2 को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए और उसमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मॉडल्स को इंटीग्रेट करना चाहिए। Okay, so for question number 2, rising public debt in Pakistan is more a symptom of weak fiscal management than an economic necessity. Discuss this statement critically. So इस तरह के स्टेटमेंट के लिए इट इज़ अ क्रिटिकल एनालिसिस, तो उसमें आपने कोई इट इज़ नॉट लाइक इन एसे कि आपने एक स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है और दूसरी को निगेट करना है। यू कैन टॉक अबाउट बोथ स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली। सो स्टेटमेंट ये आ गई है कि पब्लिक डेट जो पाकिस्तान में बढ़ रहा है इस टाइम पे, ये फिस्कल मैनेजमेंट हमारी खराब हो रही है कि क्या हमारी गवर्नमेंट हमारा जो भी उनके पास फाइनेंसेस आते हैं उनको सही से मैनेज नहीं कर सक रही, वो चीजें हमारी, इट इज लाइक इज इट अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, या ये हमारी ज़रूरत है, उस टाइम पे हमें ये डेट वगैरह, ये जितने भी हमें लोन्स मिल रहे हैं ये चाहिए। सो द फर्स्ट सब हेडिंग आफ्टर योर इंट्रोडक्शन शुड बी राइजिंग पब्लिक डेट इन पाकिस्तान एज अ सिम्टम ऑफ वीक फिस्कल मैनेजमेंट। तो आपने ये एक्सप्लेन करना है कि वीक फिस्कल मैनेजमेंट किस तरह से है। वीक फिस्कल मैनेजमेंट ये है कि गवर्नमेंट जो फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपनी ठीक से नहीं कर रही, गवर्नमेंट रिकवरी ठीक नहीं कर रही। इसमें आपने अगेन, क्योंकि पाकिस्तान रिलेटेड क्वेश्चन है, यू हैव टू बेसिकली राइट अबाउट कि टैक्स टू जीडीपी रेशो इस टाइम पे हमारा कितना है, विच मीन्स हम अंडर टैक्स कर रहे हैं इस टाइम पे, हमारे रिग्रेसिव टैक्सेस हैं या प्रोग्रेसिव टैक्सेस हैं, एंड देन इनको सपोर्ट करने के लिए एडम स्मिथ के जो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है उनको आप बीच में से कोट कर सकते हैं कि उनको अप्लाई करना चाहिए। सो ये एक टैक्स का परस्पेक्टिव आ गया इसमें। गवर्नमेंट स्पेंडिंग परस्पेक्टिव भी आ गया कि गवर्नमेंट इस टाइम पे सही से जो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स है उनके ऊपर नहीं स्पेंड कर सक रही। वाई, वन ऑफ द रीजन इज कि हम आईएमएफ की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड हैं। द सेकंड रीजन इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है, गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म एम्स हैं, लॉन्ग टर्म एम्स नहीं है। सो ये आपने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं टू सपोर्ट व्हाई इज इट अ सिम्टम ऑफ वीक फिस्कल मैनेजमेंट। एंड देन यू हैव टू राइट rising debt in Pakistan. Your third subheading would be rising debt in Pakistan as an economic necessity. Then you have to write that Pakistan is a developing country and which is marred by certain significant economic issues. जिसके अंदर हम लोग climate change system पे tackle कर रहे हैं, तो हमें इस time पे एक as a loan, एक overall ये सारा जब भी loan चाहिए अपने country को function कराने के लिए IMF के through, different चीज़ों के through, तो ये एक economic necessity भी बन गई है। पाकिस्तान में weak industrialization है, तो आपने इसकी second point को explain कर दिया। Then आपने कह देना है that how to reduce public debt in Pakistan through basically strong fiscal management and to increase your economic capacity and everything. So that could be a way forward. तो वे फॉरवर्ड के अंदर आपने दे देना है कि जी अपनी क्लाइमेट चेंज को बेहतर से बेहतर टैकल करें। आपका जो 13th 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान इस टाइम पे इमरान पाकिस्तान आया हुआ है उसको इंटीग्रेट करें, ई गवर्नेंस लाएं ताकि आपकी फिजिकल मैनेजमेंट में करप्शन और इस तरह की चीज़ें इरेडिकेट होती हैं। सो दैट इज़ हाउ बेसिकली you can integrate it as a whole. So दोनों साइड्स को आपने एक्सप्लेन किया है, बट वही बात है कि आपने इसको जेनेरिक पॉइंट्स नहीं, मैक्सिमम इकोनॉमिक थ्योरीज के साथ
हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ, इकोनॉमिक मॉडल्स के साथ आर्थर लुई कर्व को ले आए, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन ले आए बीच में, इम्पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ली, एक्सपोर्ट वाली कर ली, डिफरेंट इस तरह की वर्डिंग्स यूज करके व्हेन यू कैन एक्सप्लेन इट, यू कैन स्कोर गुड इन इट. Uh, for these documents, I will try कि either I can share them with Sir Usman and वो अपनी community में share कर दें, or those of you who need them, you can kindly text Sir Usman's coordinator and वो आपसे probably मेरा contact share कर लेंगे. We can make a group chat because बाकी जो registered students हैं उनके लिए तो groups में share हो जाएंगे. For the unregistered one, you can text them and या तो मैं उनको forward कर देती हूँ, वो आपको भेज देंगे. I'll just confirm it with you guys. But just drop a text with Sir Usman's coordinator ताकि आप लोगों को अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो एटलीस्ट उनके थ्रू जरूर मिल जाए. uh, yes, I can share my email as well. We have a hand raised. If you have a question, feel free to unmute yourself and if you want to say anything. Assalamualaikum. Walaikum salam. Ma'am, is there any possibility for you to arrange a revision class for the main topics for those students who could not join your main session? I mean, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपका ये session चल रहा है, तो I would have joined, but is it there any possibility, especially for economics paper one? So for a revision class at this time, I will check if पेपर वन के लिए आई कैन ट्राई कि हम लोग एक किसी एक डे 1 to 2 आवर्स की रिविजन क्लास रख लें मेन टॉपिक्स के लिए. बट उसमें ये हो जाता है कि समटाइम्स बिकॉज हमारी अपनी जो लेक्चर क्लासेस थी देर ऑलरेडी ऑल रिकॉर्डेड एंड वो क्लासरूम पे पोस्टेड हैं यहाँ पर. बट सिंस ईच क्लास वॉज एन आवर 30 minutes लॉन्ग, तो everything would be very rushed through. If that is fine for you, then I can arrange one. I can Yeah, discuss it with Sir Usman as well. yeah, definitely that would, I mean, help a lot at this point of time. मतलब main topics अगर cover हो जाएं तो uh, काफी help हो जाएगी. Please Sure, try for that. sure. Thank you, ma'am. Not a problem. And my email, yes. Quick review के लिए भी इन बाकी I've shared some of the important topics with the students already कि paper one के लिए paper two के लिए कौन से हैं, तो वो if we arrange a discussion class, ये जो भी crash class है, तो hopefully I would do it in the next 5 days ताकि अभी फोर्थ से तो ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले ही हम कर लें ताकि एग्जाम से बिल्कुल पहले स्टूडेंट्स को इशू ना हो. तो उसके अंदर आई विल बी all right, great. I will be going over all of these things. And my email is this. So I've shared my email in the chat. And other than that, feel free to ask any questions if you have. 8:30 पे there's another class, so I will end it at 8:30. In the meantime, if you have any questions, any concerns, feel free to ask me. And hope it helped all of you guys कि किस तरह से अपने आंसर्स को ओवरऑल लेके चलना है ताकि you can score as much as you can. Great. The important topics are shared in your group chat के अंदर. I think about 5 days ago, I sent a message with the important topics. Yes. So, average time I suggest per question is maximum 35 to 40 minutes. अगर already, that's what I said कि for your MCQs, अगर आप 5 to 10 minutes अपने multiple choice पे रखते हैं, तो you have that 10 minute margin कि आप already अपने all 4 questions जो जो attempt करने हैं, उनको एक किस्म का mark कर लें कि this is the first question you're gonna attempt, this is the second one, and उन 10 minutes में उन 4 questions की start में ही brainstorming कर लें. So that way you would have your notes prepared. Once you start writing, then आपको उस टाइम पे रुक के नहीं लिखना, सोचना पड़ेगा कि अब इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें लिखनी थी. So utilize the 10 additional minutes from your objectives का time and brainstorm at that time. और उसके बाद 35 to 40 minutes at most अपने लास्ट क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट इफ इट इज अ मॉर्निंग टाइम पेपर या जो भी टाइम है आपका 40 minutes का जरूर अपने आप को मार्जिन दे बिकॉज एंड के 40 minutes सबसे जल्दी गुजरते हैं.
उस टाइम पे आपने अपने साथ-साथ पेपर्स टाई करने होते हैं, जो आपकी एडिशनल शीट्स होती हैं, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन होती है। वो बार-बार अनाउंस कर रहे होते हैं 10 मिनट्स लेफ्ट, 15 मिनट्स लेफ्ट, दैट इज़ अगेन अ डिस्ट्रैक्शन एंड अ पैनिक मोमेंट। सो उस टाइम पे यू जस्ट डोंट वांट कि आपको वो चीज़ बहुत बॉदर करे। तो एट लीस्ट 40 मिनट्स अपने लास्ट क्वेश्चन के लिए ज़रूर छोड़ने। And which other subjects overlap? So, honestly, I am not sure because मैंने personally कोई इस तरह के overlapping subjects खुद नहीं opt किए थे in 2025. My subjects were mainly British history, economics, philosophy, and anthropology. तो इसके लिए तो आई डोंट थिंक नन ऑफ देम ओवरलैप्ड। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स अगर ओवरलैप करता है तो वो आपके कंपल्सरीज के साथ करता है। इकोनॉमिक्स एड्स यू अ लॉट इन योर करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स एंड योर एसे। तो ऑप्शनल्स के लिए पब्लिक एड वगैरह I've heard that they're similar, but I've not opted it myself, so I'm not too sure about it. Yes, the important questions, important topics actually. I'm going to share them here in the chat. Just a second. Perfect, not a problem.